तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अच्छा कर रहे होगे आप। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हमने दिया आपको, शायद आप लोग ने ज़्यादातर क्वेश्चन कर ही लिया होगा। ओके, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले दो बात आपको बताएंगे, रोज एक ही चीज़ बता रहे हैं। पहला पॉइंट तो एक ही होगा। सेकेंड वाला बात देखो, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, एक पॉइंट नंबर 1, ज़्यादातर क्वेश्चन साइन और कॉस होके जाएंगे। We have to convert almost maximum question to sine and cos, then we will solve them. Okay, yes, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, ज्यादातर क्वेश्चन क्या साइन और कॉस होके जाएंगे। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग करेंगे ज्यादातर क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा। और ये तरीका आसान भी होता है। और इसमें एक बात भी होता है कि ये कोई एक फिक्स पैटर्न में नहीं होता है, ये अलग अलग टाइप में सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ के जो क्वेश्चन होंगे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई एक पार्टिकुलर मेथड नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, टीएससी आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। टीएससी का जो फॉर्मूला है ना, आपको वो रेसिप्रोकल यूज करना है। और आपको जो क्वाड्रेटिक में जो स्क्वायर्स में है आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी इतना यूज करना है। उन तीनों को यूज करके, वो तीनों क्राइटेरिया को यूज करके आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था ज्यादातर क्वेश्चन साइन और कॉस होके जाएंगे, एक नंबर पॉइंट। दूसरा, तीनों फॉर्मूला का क्राइटेरिया को हमको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ओके, so I'm back again with a new video where we will discuss the problems from exercise 8.4. Here we will have to learn the problems related to the identities which you have learned in previous classes. Basically three identities, but other relations also, reciprocal relations also we are using here. So today we will start with the question number 4. Okay, question number 4, the questions are okay, options are given, the solutions, the answers, options are given. I have not written these options directly, we will solve these questions to get the correct answer. Okay, so the first question is 9 sec square a minus 10 square a. Okay, the question is very simple. You check 9, here we have 9, so 9 you can take common, so inside the bracket there will be sec square a minus 10 square a. So sec square a minus 10 square a is 1. We have got the relation that you just plot the value sec square a minus 10 square a equal to 1, then your answer will be 9. Okay, this is the solution here. You check. Okay, write the question again, that is 9 sec square a minus 9 10 square a. Okay, so 9 you have taken as common, then it is sec square a minus 10 square a. Okay, so sec square a minus 10 square a is 1, so 9 into 1 is equal to 9. It is your answer. Okay, very simple, no problem. Question number 4 too. Okay, 1 plus tan theta plus sec theta whole into 1 plus cot theta minus cosec theta. Okay, we can do in different ways. I already said you can do this one direct by multiplying all the terms. That means 3 terms multiplying by 3 terms, total 6 terms we will get. No, 9 terms we will get, total 9 terms. Then after getting these 9 terms, we have to work on trigonometry, then we can find out. Okay, by using trigonometric identities, that way. That will be one pattern. I am going to solve something differently. As I said you, that means almost all the questions, that means maximum number of questions we can change to sine and cos, then it will be easy for us to solve. ओके, सो आई एम गोइंग टू डू इन दिस वे, मतलब हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिखते हैं एक बार, 1 प्लस दिस इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ओके, एंड देन अगेन दिस इज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्वेश्चन को लिखा है एक बार, आपको भी लिखना है हमेशा क्वेश्चन को पहले। ओके, तो इट इज इक्वल टू, अब इन लोग को कन्वर्ट करो, देखो रेसिप्रोकल्स में लिख सकते हैं। 1 प्लस इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे, इसको तो टीएससी यूज करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया जो मैं बता रहा था। प्लस सेक को भी लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है ना, ये हो गया। फिर 1 प्लस इस कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसको भी टीएससी बोल के समझेंगे, है ना, टीएससी का रेसिप्रोकल उल्टा वाला, माइनस दिस इज कोसेक थीटा, आई कैन राइट इज 1 बाय
साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब काम करेंगे, पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, पहले इनको रिसॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हम कॉस को एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस ही आएगा एलसीएम, कॉस थीटा, तो वहाँ कॉस थीटा इंटू 1, ये कॉस थीटा हो गया, ओके, प्लस ये कॉस थीटा 1 टाइम, तो 1 इंटू साइन थीटा, बस एलसीएम वाला काम कर रहे हैं सिंपल से, ओके, प्लस एक कॉस थीटा 1 टाइम कॉस थीटा, 1 इंटू 1, ये 1 हो गया, ओके। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटा के इंटू भी लिख सकता हूँ ऐसे, तो ये साइन थीटा का एलसीएम आया साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये साइन थीटा इंटू 1, ये साइन थीटा, और ये साइन थीटा 1 टाइम साइन थीटा, 1 इंटू कॉस, ये कॉस थीटा, माइनस, हाँ ओके, तो माइनस ये साइन थीटा 1 टाइम साइन, 1 इंटू 1 हो गया। अभी देखते हैं और एक बार, ये जो है यहाँ पे देखो, ये टर्म तो सेम है ना, cos थीटा sin थीटा, ये भी cos थीटा sin थीटा प्लस में, तो ये टोटल टर्म तो एक ही है, ऑर्डर अलग होने से भी तो एक ही है, प्लस में, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, बीच में इंटू है, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस, मतलब ये टोटल टर्म को a पकड़ो, है ना, और इसको b, है ना, तो ये टोटल टर्म a हो गया, ये b, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी बन रहा है, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसमें a का मतलब है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है a का वैल्यू, है ना, तो इसको स्क्वायर होगा, तो b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ऐसा टर्म मिलेगा हमको। इसका मतलब ये टोटल में a पकड़ो, ये देखो ये a हो गया, ये साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों एक ही है, तो ये a हो गया, तो ये b, तो यहाँ पे देखो a प्लस b और ये माइनस b, तो इसको a प्लस बी इंटू माइनस बी का रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो a का मतलब क्या है, हम लोग इसको पकड़े हैं a, ये cos थीटा प्लस sin थीटा a हो गया, तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब 1, तो 1 स्क्वायर का 1 लिखेंगे। दैट मीन्स हमको ये सब टर्म क्या कैसे मिलेगा, मैं उसको रफ करता हूं पहले, तो ये रफ करते हैं, इसको भी रफ करते हैं, अगर ये चीज को रफ करके देखते हैं, हाँ क्लियरली, ठीक है। अब देखो ये टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये टोटल मल्टीप्लाई हुआ, नीचे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, दैट इज cos थीटा इनटू sin थीटा, या फिर sin थीटा इनटू cos थीटा, जैसे भी लिखो, cos थीटा इनटू sin थीटा। अब ये हो गया a प्लस बी इंटू माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये sin थीटा, पहले sin को लिखा, sin थीटा प्लस cos थीटा, ये हो गया a, ये हो गया a, तो a स्क्वायर माइनस b मतलब ये b स्क्वायर मतलब 1, तो ये 1 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, ठीक है। टोटल टर्म ऐसे बन गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आ गया इसमें फिर a मतलब साइन थीटा और b मतलब cos थीटा, अब इस लाइन में तो साइन थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, अब इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, इसे कर लिया। फिर इसका मतलब ये 1 है, 1 स्क्वायर मतलब क्या है, 1 स्क्वायर मतलब 1, तो 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 1 नहीं है क्या, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस 1 को कैसे लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोल के लिखा, ठीक है ना। हाँ, अब अगर हम लोग इसका ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, होगा, ओके। मैं और एक लाइन नहीं लिखूंगा, आप लोग 2 लाइन में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। मैंने फिर बताया, मैं यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखा हूँ, ये लाइन नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना। आप लोग को लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, आप लोग अगर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये माइनस है, तो मैंने ब्रैकेट हटा दिया, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, मैंने नेक्स्ट स्टेप भी यहीं पे कर दिया। तो आपको अगर समझ में आता है तो डायरेक्ट करो, नहीं आता है तो ये पहला वाला स्टेप लिख के करो, ठीक है। हाँ, अभी देखो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा 2 साइन थीटा cos थीटा। अच्छा, तो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं, ऊपर में हुआ 2 साइन थीटा और cos थीटा,
ना, और नीचे में तो है cos थीटा sin थीटा है, cos थीटा और ये sin थीटा, अब दो तो प्रोडक्ट ही तो है, ये sin थीटा cos थीटा और cos थीटा sin थीटा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना आया 2, तो ये आपका आंसर होगा। So here we have question number 4.3. The question is sec a plus tan a whole into 1 minus sin a to find out the value. Okay. Now we'll go for direct multiplication. Then also we'll get the problem at all. Okay. But as I said you, from here we just write the solution. Okay. As I said you, then most of the question we will have to convert to sin and cos. Let us start with that system only. Okay, so here we have already sin, need not to convert it. Okay, this one we can. So now you check sec is 1 by cos a. Here note theta, here it is a, cos a, plus, and tan is sin a by cos a, sin a by cos a. Okay, then this one is 1 minus sin a. Okay, now cos a you take as LCM, so cos a comes here. Okay, now cos a one time cos a, 1 into 1 ये तो 1 हो गया, plus, so cos one time cos 1 into sin a हो गया, ठीक है ना, एकदम सिंपल। आपका जो LCM पठान में कर दिया, इंटू यहाँ पे इंटू ये 1 माइनस ये sin a। तो देखो अभी ये टर्म, यहाँ पे देखो ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो ये a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है, नीचे में तो cos a है, तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा, इसका नीचे में तो कुछ भी नहीं है, दैट इज 1। सो अगर इसको फ्रैक्शन में पकड़ोगे तो ऐसा ये 1, तो cos a इंटू 1 तो cos a हो गया, तो नीचे में बचे होगा ओनली cos a, लेकिन ऊपर में क्या होगा a प्लस बी इंटू माइनस बी हो रहा है कि नहीं, देखो सेम टर्म, इट इज इन, दिस इज इन a प्लस बी एंड दिस वन इज इन a माइनस बी, तो इसका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर को 1 ही लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब क्या है, आइडेंटिटी में जा रहा हूँ, आइडेंटिटी में जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक का, तो क्या होगा ये कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर हो गया, और ये बाय ये कॉस ए हो गया, तो एक कॉस और एक कॉस चला जाएगा, तो बचा एक कॉस, दैट इज cos a। मैंने नहीं काटा यहाँ पे, ठीक है, आपको समझना है, cos a और एक cos a चला गया तो एक cos a बचा, दिस इज योर आंसर। Then friends, before going to solve question number 5 and 6, which are really important questions, okay, exam point of view, these questions, question number 5 and 6, very very important question. So before going to solve these questions, I want to give you these questions. Here we have 6 questions. Okay, these 6 questions, just I want to read out the questions. Okay, we have to prove, that means show that cos square theta into sin square theta, that means cos square theta tan square theta, sorry, cos square theta tan square theta equal to sin square theta, to prove. These all are very simple question. Next one, 5 sin square theta plus 4 cos square theta equal to 4 plus sin square theta. Next, tan theta plus cot theta is equal to sec theta into cosec theta. Now next one is sec theta minus sin theta into tan theta equal to cos theta. 5 number, 1 plus cot square theta by sec theta is equal to cosec theta into cot theta. Then 6 number, 1 plus sin theta by cos theta equal to cos theta by 1 minus sin theta. Okay, you can WhatsApp me in this number this solution. ओके, ये सब आपको सॉल्व करना है। मैं विद इन हाफ एन आवर में मेरा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, विद इन हाफ एन आवर में, जिसमें 5 and 6 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सॉल्व करके भेजना है। कोई एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं करेंगे, रॉन्ग होने से रॉन्ग सेंड करो, लेकिन खुद करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कितना आता है, रॉन्ग किसे कर रहे हो, मुझे चेक करना है। ओके, रॉन्ग होने से रॉन्ग सेंड करो, बट अपने आप करो खुद, और ये सबको सॉल्व करो। अगर नहीं आता है, नो नीड टू सॉल्व, अगर आपको करने नहीं आता है, नो नीड टू जस्ट इन्फॉर्म मी, आई डोंट नो। ओके, you should have that much courage to say I don't know. It's not a bad word, it's very good word, I don't know, we can learn. ठीक है ना, तो मुझे नहीं आता है ये बोलना कोई शर्म का बात नहीं होता है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं आता है तो आप सीख लोगे, मुझे भी बहुत सारा चीज नहीं आएगा, मैं सीख लूंगा, तो हर कोई चीज सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करोगे अभी, है ना, हर एक क्वेश्चन के। अभी 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है,
तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके व्हाट्सअप करोगे, ठीक है ना। बी ऑनेस्ट प्लीज।